اور اگر اصیل ہیں آپ تو آپ نے جو حکم لگایا ہے، جو حکم کسی صحابی پر لگایا اصیل ہونے کی حیثیت سے، یعنی میں یہ حکم لگا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں 1400 سال پہلے جس ہستی کا انتقال ہوا، آپ اگر خود یہ حکم لگا رہے ہیں تو آپ بحیثیت مجتہد یہ حکم لگا رہے ہیں کہ بحیثیت محدث یہ حکم لگا رہے ہیں، یا بحیثیت مورخ حکم لگا رہے ہیں، یا بحیثیت فقیہ یہ حکم لگا رہے ہیں؟ آپ اگر اصیل ہیں تو اس کو متعین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہر کس و ناقص کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہزاروں لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، مگر ہم تقلید کرتے ہیں تو سیدنا امام اعظم کی، یا تقلید کرتے ہیں سیدنا امام شافعی کی، یا تقلید کرتے ہیں حضرت امام مالک کی، یا تقلید کرتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کی۔ تو جب ہم سب کی بات کا اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ شخصیتیں خاص ہوتی ہیں جن کی بات کو ہم لے کر چلتے ہیں، تو اگر آپ اصیل ہیں تو بتائیے جو حکم نفاق کا آپ اس ہستی پر لگا رہے ہیں، آپ بحیثیت محدث لگا رہے ہیں کہ بحیثیت فقیہ یا بحیثیت مجتہد؟ اس لیے کہ کسی صحابی پر حکم لگانے کے لیے ایک عام آدمی کو جرات ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک نے اس سلسلے میں متعدد حدیثوں میں جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے۔ اس لیے یہ متعین کرنا ضروری تھا کہ آپ اصیل ہیں یا وکیل ہیں۔ وکیل ہیں تو کسی جماعت کے وکیل ہیں یا کسی ایک فرد کے وکیل ہیں، اور اگر اصیل ہیں اور خود یہ حکم لگا رہے تو کس حیثیت سے لگا رہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ کوئی نہیں بولے گا، آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت، نہ آپ لوگوں کی، ہماری گفتگو ایک عالم سے ہو رہی ہے جو کہا، آپ لوگ خاموش رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حضرات، میں اگر کچھ تھوڑا عرض کرتا ہوں تو سب آپ لوگ کہتے ہیں کہ بات کو ادھر مت لے جائے، ہم کو شرائط میں خود یہی چاہتا ہوں کہ شرائط ہی پر بات ہو۔ میں شرائط پہ آ گیا، موضوع لکھ کے دے دیا، آپ نے کہا کہ جملہ ناقص ہے، میں اس کو تام بھی بنا دیا، پورے طور پہ میں نے واضح کر دیا۔ اب ہونا چاہیے کہ چلیے اگر اس موضوع سے آپ کو کوئی اختلاف ہے تو وہ بات کرتے ہیں۔ اب کیا ہے، اصیل کا معنی آپ نے جو بیان کیا اس کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اصیل آپ نے کہہ دیا میرا کیا ہے، اصیل سے گفتگو کرنے کوئی مطلب نہیں، ہر ایک کو اختیار ہے جو بھی چاہے عقیدہ رکھے۔ ہم ہر فرد سے کہاں جائیں گے بات کرنے؟ تو پھر اگر اس حیثیت سے عقیدہ رکھنے کی وجہ سے میں اصیل ہوں تو ہر کوئی اصیل ہے، پھر تو کسی سے گفتگو نہیں بنتی۔ تو اس پہ آپ نے کہہ دیا ہاں میری گفتگو کسی نے، اس لیے کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ یہاں عالم ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا اگر اس طریقے سے آپ کہیں اصیل اور کیا ہے وکیل کی حیثیت سے، تو یہاں ہر کوئی اصیل ہے، ہر کوئی اصیل۔ یہ نہیں کہا کہ اب آپ کا مناظرے کا حق نہیں بنتا کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ دیکھو مفتی صاحب نے کس طریقے سے بات کہاں سے کہاں جا کر گھما دیا ہے، اس میں بالکل مفتی صاحب اس کا آپ کو قول کرنا پڑے گا۔ اور یہ سب مناظرانہ کیا ہے شاطرانہ چلے ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، اور ہم کیا ہے چونکہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں مبنی بے اخلاص کہ بھائی جو اختلاف ہے بیٹھ کر کے مل بیٹھ کے حل کر لیا جائے۔ آپ کا موقف قرآن و سنت اور کیا ہے اجماع صحابہ کی روشنی میں ثابت ہے تو ہم مان لیتے ہیں، میرا موقف ثابت ہے تو آپ مان لیجئے، یہ کیا ہے جذبہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں اس طریقے اب آپ مجتہد ہیں یا کیا آپ کیا ہیں کہ آپ حکم کس حیثیت سے 1400 برس کے بعد لگا رہے ہیں؟ ہم 1400 برس نہیں 10,000 سال گزر جائیں لیکن اپنی مرضی سے کچھ حکم نہیں لگاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نص آپ کا کیا ہے نص سے صریح موجود ہے منافقت معاویہ کی بنیاد پر، لہذا ہم مجتہد کسی بھی حیثیت سے نہیں، رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کیا ہے یزید ہو گیا والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان کو منافق مانتے ہیں، منافقت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے واسطے مدعی ہیں، اس کے واسطے ہم مثبت ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان کی روشنی جہاں پر نص ہو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہے ہی نہیں، یہاں پر نص صریح موجود ہے، اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی نص نہ موجود ہو، کیا ہے وہاں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص صریح موجود ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے منافقت کے تعلق سے، اور جب کیا ہے خلیفہ راشد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ معاویہ میرے دشمن ہے، معاویہ میرا دشمن ہے اور
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو جب مولا نے فرما دیا معاویہ میرا دشمن ہے، تو دشمن کیا ہے؟ وہ بغض رکھتا ہے۔ دشمنی کیا ہے؟ محبت میں نہیں ہوتی ہے، دشمنی بغض ہی کی بنا پہ ہوتی ہے۔ تو مولا کے فرمان سے معاویہ کا دشمن مولا علی ہونا ثابت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہاں پر کسی کلام کی گنجائش ہے ہی نہیں، معاملہ بالکل واضح ہے، صاف ہے، صاف فرمان رسول نص صریح کی بنیاد پر ہم کیا ہے یزید کے والد معاویہ ابن ابی سفیان پر منافقت کا حکم لگاتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے مثبت ہیں، اس کے مستدل ہیں، اس کے مدعی ہیں۔ میدان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ نے یہ گفتگو سماعت کی، یہ شرائط مناظرہ کی محفل ہے، مجلس خطابت نہیں ہے۔ وہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ نص صریح موجود ہے، تو آپ نص صریح کی تعریف کریں اور وہ نص صریح پیش کریں۔ پیش کر دیا، اب آپ کو نہیں ماننا ہے آپ مانیں۔ ٹائم میرا چل رہا ہے، آپ سے میری گزارش ہے، میں تو خاموشی سے سنتا ہوں، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نص صریح ہے، تو نص صریح کی یہ تعریف کریں اور پھر وہ نص صریح کیا ہے اس کو پیش کریں گے، اور پھر وہ یہ بتائیں گے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نص صریح موجود ہے تو ایسے شخص کو سیدنا امام ابن امام، سید ابن سید، تقی ابن تقی، بلکہ امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا رسول پاک کی نص صریح کے خلاف ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کی؟ اور جو کسی منافق کے ہاتھ پر بیعت کرے اور مسلمانوں کی باغ ڈور کسی منافق کے ہاتھ میں دے، بتائیے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کے بقول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نص صریح ان کے منافق ہونے کی، تو انہوں نے جب ایک صریح منافق کو خلیفۃ المسلمین بنایا اور 20 سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے اور ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے ان کی بیعت کی، تو ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیا حضرت حسن مجتبی مورد الزام ہوئے کہ نہیں؟ ان کے اوپر کیا حکم ہوگا جو ایک منافق کو خلیفۃ المسلمین بنائے؟ اور پھر وہ جو نص صریح مصطفیٰ کی مخالفت کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے جو بیعت کی ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان جو دمشق کے گورنر تھے، ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر بنا کر کے بھیجا۔ ٹائم ہو گیا، تو یہ بتائیں کہ ان حضرات نے کیا منافق کو خلیفۃ المسلمین بنایا؟ اور ایک سوال اس سے پہلے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہی میں آپ حضرات سے عرض کرنے جا رہا ہوں، میں خود اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو قبلہ مفتی صاحب نے یہ تو سمجھ لو بالکل یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جہاں مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے وہ آ گئے ہیں، تو ہم اس کے تعلق بے شمار دلائل ہیں، ہر ایک کے بہت واضح جواب ہے میرے پاس۔ تو میں جواب دوں یا شرائط مناظرہ طے کیے جائیں گے؟
उसी में है। मुफ्ती साहब बातों का जवाब दूं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमने इस बात को नहीं छेड़ा, आपने नस्से सरी का लफ्ज लिया है, नस्से सरी दलील पेश करना है कि नहीं अपने मैं मौके पेश पर? करूं? हमने मुतालबा किया आपसे, तो आप तो मैं पेश करूं? हाँ तो पेश कीजिए। और तारीफ पहले तारीफ। नस्से सरी की तारीफ, 3 सवाल है। सिर्फ पहले सुन लीजिए आप हजरात, लीडर वाले हजरात जो बैठे हैं, आप पहले बात को एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। सवाल असल नहीं है, आप कीजिए अवामुल नास में से, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी बात सुन। चलिए सदर साहब सुन लें। सदर साहब, मसला असल में क्या है, इन्होंने अभी एक दावा करके ये कहा कि उनकी मुनाफाकत नस्से सरी से साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़े खिताबत हमारे पास भी और हम करते भी। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने जब वहां पर नस्से सरी बोला तो नस कहते किसको? नस ही तो दलील होती है। तो आपने दावा करके खुद दलील पेश कर दी। दावा करके आप लोग मत बोलिए, सदर साहब बैठे हैं, सुनिए हमारे आवाम सवाल हम 3 सवालों का जवाब दिलवाइए। और रही बात यहाँ पे शरायत मुनाजिरा तय करने की जगह सदर साहब खाली लफ्जों के हेर फेर करके पूरा भाग नहीं एक बात के संदा शिकन जवाब है। नहीं मुफ्ती साहब से मिला, इस मौजू पे आपको नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज के हम क्या है बिल्कुल वाज़िह सुन्नत अहादीस कुरान के आयात हम पेश करेंगे बस उसको, लेकिन इजाजत है आप लोग क्या चाहे शरायत मुनाज़रा तय हो या गुफ्तगू इस पे की जाए। आपने ये बात फिर करी क्यों नस्से सरी की? बोले शरायत मुनाज़रा तय करो। हम तो शरायत मुनाज़रा ही पर बात कर रहे थे, आपने नस्से सरी की बात बीच में पेश की। नहीं ठीक, आप हम सब समझते हैं, हम की बात अलग है। मैं तुम्हें झुड़को ही आवाज के करके बोला था अवाम के अंदर ये कितना होगा अभी ना को बैठ को खाली ये लफ्ज वो लफ्ज सिर्फ लफ्जों सिर्फ ये लफाजी है। खुदा की कसम अगर कोई फरीक सालिस सौतों होकर जानने वाला होता वो गवाही देता कि ये सिर्फ लफ्जी बहस है, ये कोई मानवी बहस नहीं है। बहस नहीं है, आप अवामुल नाज़िर आप नहीं समझ रहे हैं, ये इल्मी बहस है। हमने जो मुनाज़िर को हटवाया वो इसी बुनियाद पर, आप जिसको इल्मी कहते हैं, आप जिसको इल्मी कर इल्मी बहस आगे शुरू होगी तब आपको पता इल्म क्या चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह अना मदीनतुल इल्म। अब देखो आप मुफ्ती साहब ने खिताब किया तो मैं भी खिताब करूंगा, वरना मैं नहीं चाहता क्या अना मदीनतुल इल्म वालियुल बाब शहर मदीनत तो क्या मदीनतुल इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है और उसका दरवाजा अली है। जिसको अली से मोहब्बत होती है उस पे इल्म के रुमूज और असरार के दरवाजे खुल जाते हैं। आपको बोलने का हक नहीं, वक्त मेरा है, वक्त मेरा है। मैं यही चाहता हूँ शरायत मुनाज़रा तय हो जाएं। हमारे पास बहुत दलाइल हैं, अगर आप इजाजत दें कि तो ठीक है मैं पेश करता हूँ, वरना फिर बात यही रह जाएगी। बराए करम बहुत वक्त हो गया, नमाज भी ये होने जा रही है, मैं तो शरायत तय करें। आप उधर से कह दीजिए, मैं उसी के लिए तैयार हूँ। अभी आपका वक्त आई है, आपकी बारी आई है, आप मुनाज़रा मैं आपसे पूछ रहा हूँ शरायत मुनाज़रा तय किए जाए या उस पर जायज़ है? जवाब दो कि शरायत मुनाज़रा तय, तो मुफ्ती साहब उधर आ जाए, उधर कह दीजिए लिखे दे दो लीजिए। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा काम नहीं बिल्कुल बहुत अच्छे से पहले जवाब देखो, असीर और वसील का जवाब दो। असीर इस हैसियत से है, वकील भी इस हैसियत से कि ये मुनाजरा सूफी इस्लामी बोर्ड के बैनर पर होने जा रहा है, तो उसका वकील और निस्बत के हिसाब से लेकिन मुझे आप बार बार बोलेंगे तो भी लिख नहीं पाऊंगा। तो देखिए हम फिर कुछ लिखेंगे तो हो सकता है मुफ्ती साहब
ये कहें कि टाइम इसमें किसका चल रहा है? टाइम आपका है कि मेरा? टाइम मेरा चल रहा है। तो मैं अर्ज करता हूँ मुफ्ती साहब जो अल्फाज फरमाते हैं हम उन्हीं अल्फाज में लिख देते हैं। मैं क्यों बोलूँ? हम क्यों बोलेंगे? दावा आपका, हम क्यों? नहीं तो फिर मुमकिन है कि आप कहें कि यहाँ पे जुमला ताम है या नाकिस है, बहस फिर है। आप जो अल्फाज कहें ऐसे लिख के दो ताकि क्या है मौजू जो बिल्कुल मुनक्का हो जाए, उसमें कोई इबहम न रहे। आप दावा ही मुतय्यन नहीं कर पा रहे करने के लिए आप अपने आलिम हम बात को यही खत्म कर देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं अभी हम लिख के देंगे तो मुफ्ती साहब कहते हैं इन अल्फाज में लिख के दे दीजिए, हम लिख के दे देते हैं ताकि फिर क्या है। आपका अकीदा मानते ही नहीं है तो हम अल्फाज क्यों कहेंगे? हमने एक शब्द कहिए, अब मेरे अकीदे आप ले आइए बस, बाकी ये नहीं उसमें आप गुफ्तगू कर नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मेरे ही दावे को आप जिन अल्फाज में चाहते हैं मैं कहूँ। हम तो हजरत अमीर मुआविया को साहब ही मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप मेरे मौक़िफ़ को अपना बनाइए, मैं अपना मौक़िफ़ किन अल्फाज में पेश कर दूं आप बता दीजिए। आपके अपराध भी बार बार उसी को कह रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि शराइत मुनाज़रा। मुझे टच ना करो, मुझे टच करो, डिस्टर्ब करूंगा तो फिर मैं बात कर रहा हूँ। हम जानते हैं फिर लंबा क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं लंबा करना चाहता, किबला मुफ्ती साहब हम नहीं लंबा करना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं अपनी तरफ से लिख के दूंगा तो मुमकिन है आप कुछ कहिए तो फिर कहें ठीक है कदियत अहमद दे दें तो हम लिख कर साइन करके दे दो। मैं भी अपने अल्फाज लिखूं तो हो सकता है मुफ्ती साहब कुछ कहें, उसके बाद में कहती करें तो बाकी बात करेंगे, फिर बात बढ़ेगी। मैं ये चाहता हूँ जिन अल्फाज में मुफ्ती साहब कहें हम उन अल्फाज में लिख के दे देते हैं। जी जी मैं लिख दूं फिर बात तो नहीं बढ़ेगी आगे? ठीक है चलिए मैं लिख के देता हूँ। मौजूद नहीं कोई हो गया दादा। वो तो उसी गली बात है। जी होगा। भाई मैं ऐसे नहीं पेश कर रहा हूँ, साइन कर मैं आपको सुना दे रहा हूँ, आप लोग भी कहें हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने मौजू लिखा मुफ्ती है साहब वालिदे यतीम बिस्वाई साहब जी मतलब बात पूरी करके कि ताकि फिर दोबारा आना जाना ना पड़े उसको लेकर के, मतलब कि हम फलां लोगों की जानिब से मौजूए मुनाजरा ये है वो लिख करके, चूंकि कई लोगों का नहीं और भी कई लोगों का दस्तखत रहेगा ना। नहीं आप सबका भी तो कुछ लोगों कुछ जिम्मेदार लोगों का भी तो नहीं वो असल में सबका दस्तखत रहेगा ना। तो मैं यही चाहता हूँ आप अल्फाज बता दीजिए। नहीं मैंने ये कह दिया, आप अपने अल्फाज में ये जो मुझको कहना मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से क्या बतौर मुद्दई मुस्तदिल मुस्बित क्या कह दूं? अब वो तो बताइए, आप बता दीजिए। मैं चाहता हूँ कि बात आगे नहीं आप जो चाहेंगे वो आप होंगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि मुनाफिकत अमीर मुआविया का शिकायत आ जाए। आप क्या अगर बात इतनी मोतबर है तो आप मान सूफी लीजिए। इस्लामिक बोर्ड की जानिब से हेलो और आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, गुफ्तगू सुननी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात आपकी समझ में आ जाए। आप खुद कोर्ट में जाते होंगे अपने किसी मामले को लेकर के, मैटर को, आपका वकील आपके बगल वाले का वकील वो जज से बहस करता है, आप लोग खड़े रहते हैं, क्या बोल रहा नहीं समझ में आता है, खामोशी से सुनिए बस। लाइन ही खत्म हो गई। एक फिरका आपके यहाँ पैदा हो इस्लामिक बोर्ड, चूंकि वो अपने आप को अहले सुन्नत लिखेगा नहीं, उसके ध्यान में आएगा ही नहीं।
میں تو بالکل ہو گیا اس میں جرح اور تعدیل کرنی ہے. ہو گیا سب کچھ چوراہے کے ہو گئے. اور کچھ ہاں پڑھ کے دیکھیے میں پڑھ دوں کچھ ہو پھر بتائیے میں وہ بھی لکھ دوں. موضوع صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے یہ وہ مناظرے کا موضوع طے قرار. تھوڑا سا رہے گا نا, بنگلور بھی تو لکھ دیجئے, جی پورا پتہ تو لکھ دیجئے. مطلب تنظیم ہے تو کہیں کی ہے نا وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو اسی لیے کہتے قبلہ مفتی نہیں, آپ بتا دیں تاکہ لکھوں تاکہ نہیں وہ اصل جی جی ٹھیک. ہمارا لیٹر ہیڈ ہے, اس میں ایڈریس بھی ہے, لیٹر ہیڈ کو لکھ کر ڈالو. ہاں لاؤ لیٹر لاؤ بیسٹ. تو اس پہ ٹائم زیادہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں. ہاں ہمارا لیٹر صحیح ہے لیٹر. ذرا دیکھیے گا نماز کا وقت کئے بجے تک ہے؟ ظہر کا وقت کئے بجے تک ہے اس کو دیکھیے گا. یہ جو لکھا ہوا لکھا ہوا شہر بنگلور. ہاں ٹھیک 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 لیٹر پہ لکھتے کوئی بات نہیں. ہاں بیٹھے وہی لے آئیے ہوگا. صوفی اسلامک بورڈ کرناٹک. اب مجھ کو جانا ہے, آپ بقیہ دیکھیں گے. مجھے ہر حال میں 6 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. نہیں تو وہاں نہیں بورڈنگ وغیرہ تو سب ہے. فلائٹ کا ٹائم کیسے ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ چالو بہت مسائل ہے. ہاں صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے اسلامک بورڈ ہے, نیچے ایڈریس ہے یہاں. لکھ دینا یا پھر لیٹر پیڈ ضرورت نہیں ہے. یہ موضوع موضوع مناظرہ یہاں سے لکھو. یہاں سے موضوع جانب سے موضوع مناظرہ. یہ موضوع یہ موضوع ایک ایک لفظ پہ دھیان دو. 1075 یہ موضوع مناظرہ. ہم کو زیادہ بولتا تھا آج اس کو بولتی بند. ہاں جی اب سمجھ میں آ جائے گا. غیر عالم کو بات کہنا حرام ہے. کہہ دیے تو آپ کو نجات مل گئی. ہم تو ہو گیا ہم ایسا ہے نماز کا انتظام یہاں ہو سکتا ہے؟ ہاں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, میں تو باوضو بیٹھا ہوں. زیادہ بس شفیع بھائی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے, نماز پڑھنے سنیں. اس کے بعد اور جو چیزیں ہیں جیسے کس ڈیٹ میں ہونا چاہیے, کہاں پہ ہوگا, تو وہ لوگ. لیکن ابھی اس میں بس تھوڑی 2 چیز رہ گئی ہیں, وہ میں ان سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے نہیں وہ آپ لوگ طے کر لیجیے گا. ابھی کچھ اور چیزیں ہیں اس میں, لیکن خاص چیز جو ہے وہ میں ابھی وہ جو لکھ کے دے رہے ہیں نا اس میں ایک چیز میں ان سے اور پوچھوں گا. ہاں پڑھ دو پڑھ دو سنا پھر کچھ پڑھ کے سنا اور کچھ سائن بیچ میں نہیں بنے گا, ڈیٹ بھی ڈالنا ہے نا. ہاں ہاں نہیں ہوگا پھر جواب بھی دینا ہے نا, اس کے لیے تھوڑا پڑھ لیں. تو دونوں صدر لوگ
बात कीजिए और कह दीजिए कि इस पर अभी गुफ्तगू नमाज के बाद होगी, बस बात कर लीजिए। हाँ इत्मीनान से लिखना है तो लिखें, यार नहीं तो नमाज के पूर्व में बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, मजा हो जाएगी, आ जाएगी। नहीं पढ़ते हैं जी। हाँ यहाँ डालें। हाँ ये डाल दें सर। ये साहब बताइए, गुफ्तगू ठीक रही? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मैं सब तहरीर करूँगा। नमाज की नौकरी है ना, बोलती बंद हो गई ना, एक ये ना कहे कि जलील हो गया ना। बहुत दूर से सोच रहे। आपका नाम क्या? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत मजा, बहुत सुलझे हुए आपने, बहुत सुलझे हुए आदमी आप माशाल्लाह। आपने कर दिया, ये उनका। आप लोगों में से भी कोई करेगा? उन लोगों में से? अच्छा, ये चीज़ आप जैसा मुनासिब समझे। अभी तो मोहर लगाई ना उन्होंने, ये हाँ। अपने यहाँ दो यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जैसे सदरे, अच्छा, और दो एक और जिम्मेदारों से दस्तखत करवा लीजिए। और इस पर मैं थोड़ी सी अभी गुफ्तगू करूँगा उनसे, तो आप कह दीजिए कि दोनों लोगों को नमाज पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, नमाज के बाद फिर बैठ जाएंगे। कह दीजिए ताकि हम लोग उठें। डिबेट नहीं है, नमाज का मौका दिया, नमाज के बाद ठीक है, चलें। ठीक, इस पे यानी अवाम के सामने एक बार उसका सवाल पूछना, वो अवाम के सामने इसका अमल नहीं, अभी तो आपने कहा था कि लिख करके दे देंगे। नहीं, अभी तो आपने कहा था लिख करके दे देंगे। दोनों अमल तो है ही। आप जब एक बार कह चुके कि एक बात नहीं होगी, वो लिख करके दे देंगे, तो या तो आप लोग हमारे अपने एतबार से हमको चलाइए। नहीं, कुछ भी बोलें, जब दोनों सदरों ने तय कर लिया कि भाई बात नहीं होगी, वो लिख करके दे दें, आप साइन कर दें, तो फिर अब हमने उसको मान लिया। अब फिर ऐसे करके ऐसे नहीं होता है। हम मुख्तसर वो जब बढ़ाएंगे और बेंगलौर की तरफ से इस्लामिक सूफी क्या है वो बोर्ड, बेंगलौर को मौजूद मुनाजरा कोई हम लिख के देंगे, लेकिन मुफ्ती साहब वहाँ से कह दें। हाँ, हम लिख के देंगे। मौजूद मुनाजरा नहीं, आवाम को तो पता चलना चाहिए ना। मुनाजरा की तरफ से बोर्ड के लिए मौजूद मुनाजरा दर्ज झैल है। वो आप लोग समझिए, जो टाइम आप लोगों ने मुझे दिया था वो टाइम खत्म। उनकी क्या मुराद है, वो सिर्फ हमारी मुराद थोड़ी, उनकी अपनी मुराद है ना, हमारी मुराद नहीं है। वो मुनाफिक से क्या जो लिखेगा बस उतना वो खुद बताएगा। हमारा मौजूद मुनाजरा दर्ज झैल। नहीं, कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं कर रहे हैं। किबला मुफ्ती साहब से ये अर्ज है कि मुनाफिक वैसे तो एक वाज़ेह है, हर कोई समझता है मुनाफिक किसे कहते हैं, जिसके कौल फेल में तजाद हो। लेकिन मेरी गुजारिश अर्ज मुफ्ती साहब किबला से ये है कि मुनाफिक के माना में जो भी इश्तिबाह हो, उस इश्तिबाह को बयान कर दे कि कौन सा मुराद लेते हैं। हम अभी लिख के देते हैं कि मेरी मुराद ये माना है। मुफ्ती साहब, हम चाहते हैं अवाम भी सुन ले। मसला असल में ये है कि आप नजरिया रख रहे हैं हजरत अमीर मुआविया की बातों से, आप मुतय्यन कर रहे हैं ना, हम भी तो आप जोर दे रहे हैं कि आप बताइए, हम मुतय्यन करेंगे। आप आज तक क्या मानते आए हैं वो आप बताइए। मुफ्ती साहब मुतकल्लिम हैं, अभी मैं मुआविन की हैसियत से हूं। हाँ, बात कीजिए, मैं बात कर लीजिए। दूसरे काम शेर मौलवी की तरफ से आप आज तक क्या मानते हैं, इसका मतलब आप जो है अमीर मुआविया को मुनाफिक मानने वाला नहीं कर पाए कि हम अमीर मुआविया को मुनाफिक, कौन सा मुनाफिक मानते हैं, आप बताइए। मैं चूंकि देखिए बात आगे हाँ, बात हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते।
देखिए हम भी बात आगे नहीं बढ़ा किबला, बस मैं अर्ज कर रहा हूँ, खामोशी आप ने कह दी, मैं ये जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि फिर ये मजीद आगे बात न बढ़े। हम कुछ लिख के देंगे तो फिर ये होगा कि इससे क्या मुराद है। तो हम चाहते हैं कि मुनाफिक के माना में आपको इश्तिबाह क्या है, कि हो सकता है इन्होंने ये मुराद लिया या वो, आप वो इश्तिबाह बयान कर दीजिए, हम तायीन कर देते हैं कि ये मैं ये माना मुराद लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आज तक आप हज़रत अमीर मुआविया को मुनाफिक मानते आए हैं, किस एतबार से मानते आए हैं, वो आप बताएं। वो वजाहत कर दीजिए, आपको इस्तिबा कहाँ हो रहा है। हम इस्तिबा की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमें इस्तिबा क्यों हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मानते ही नहीं, इस्तिबा आप हो रहा है जब भी आप वजाहत तलब कर रहे हैं। इस्तिबा में आप फंसे हुए हैं, आज तक आपको ये पता ही नहीं कि आप मानते हैं। मैं फंसा हुआ भाई, आपने जो कहा मुनाफिक है, आप हुक्म लगाइए जुमले ताम्मा खबरिया होना चाहिए, जबकि वो भी पहले जुमले ताम्मा ही था। मैंने लिख के दे दिया, हम इसीलिए हम अर्ज कर रहे थे कि मुफ्ती साहब किबला खुद फरमा दें किन अल्फाज में मैं लिख के दूं। तो अब भी मैं तैयार हूं, मैं कहता हूं लिख के दूंगा, साइन करके दूंगा सब कुछ, लेकिन आप खुद फरमा दीजिए कि मुनाफिक के इतने मानी होते हैं, इन मानी में से आप कौन मुराद ले रहे हैं, बस हम बता देते हैं। अरे तो ये तो आपको तय करना होगा ना। नहीं, आप भी जानते हैं। एक बात मुझे बताइए भाई, सवाल आप कर रहे हैं तो सवाल तो वाज़ेह करें। एक मिनट सवाल वाज़ेह कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, दोनों तरफ के जिम्मेदारों ने शराइत मुनाजरा के लिए 5 बजे तक वक्त मुतय्यन किया था। आप सब ने देखा कि 4 घंटा सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्तनद आलिम से गुफ्तगू करने में ज़ाय हो गया। अगर फ़िलहाल जो हमारे मुतकल्लिम हैं, मुखातब हैं, अगर मुतय्यन हो गए होते तो शायद बहुत सारी बातें इसी वक्त तय हो गई होती, लेकिन अफसोस। खैर, अभी दोनों तरफ के सदर हजरात से मैंने गुजारिश की कि 5 बजे का वक्त ख़त्म हो गया, अब आगे आप लोगों का क्या मशवरा है। इन हजरात ने कहा कि आप शराइत जो लिख कर दे दें वो उस पर दस्तखत करके तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। मुफ्ती शहजाद साहब ने बात जो रखी है वो बिल्कुल उसूल मुनाजरा के मुताबिक है, इसलिए कि मुफ्ती साहब ने जो कहा है, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने, उसमें कोई भी बात बेउसूली नहीं है। इसमें लिखा है कि यअलम अन्नल वाजिब अलस्साइल अन युतालिब अव्वलन मा अमकनहु मिन तारीफ मुफरदातिल मुद्दआ व तायीनिल बहस व तमयीज़िही अन साइरिल अहवाल कमा इज़ा दअल मुअल्लिल अन्न निय्यत लैसत बिशर्तिन फिल वज़ू फयंबग़ी लिस्साइल अन यक़ूला मन नियत व मशर व मल वज़ू। ये लफ्ज़ उसूल मुनाजरा के हैं। सब इल्म वाले समझते हैं कि इल्म क्या चीज़ है। इस इबारत का मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई दावा पेश किया तो सामने वाले के ऊपर वाजिब है, इसमें वाजिब लिखा हुआ है, वाजिब है कि वो जिस हर्फ की वजाहत चाहे सामने वाले से उसकी वजाहत तलब कर सकता है, और सामने वाले पर लाजिम है कि वो अपनी मुराद बताए। तो मुराद हम नहीं बताएंगे, मुराद जो इस्तेमाल कर रहा है वो बताएगा। इसलिए हमसे मुतालबा करना उसूल मुनाजरा के खिलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बेहतर ये होगा कि क़िबला मुफ्ती साहब जो अल्फाज में चाहते हैं वो बता दें, हम उन अल्फाज में लिख करके दे देंगे। अभी आपने सवाल किया है, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी। हम बोलते हैं आप उठ के आए, ये इजाजत, ये गलत।
मुफ्ती साहब कह रहे हैं, अभी मैंने लिख के दिया, सबने कहा ठीक है। अब कहते हैं निफाक मुनाफिक का क्या मतलब है? कौन नहीं जानता है मुनाफिक का क्या माना है? मुनाफिक का कौन? अब यहाँ पर कुरेद करने कोई, अब आप मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कौन सा माना मुराद ले रहे हो, तो हम कहते हैं आप इसका मतलब यह है, जब मुफ्ती साहब मुझसे ये कह रहे हैं आपकी मुराद क्या है, तो इसका मतलब यह है कि माने निफाक क्या है, चंद है ना, तो हम अपनी तरफ से बयान करेंगे तो फिर उस पर सवाल हो सकता है। इसलिए मैं क्या है, गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे न बढ़े, असले मौजू पर गुफ्तगू और शराइत जल्द से जल्द तय हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं जहां पर इश्तिबाह हो रहा है, मुफ्ती साहब को लग रहा है कि पता नहीं ये माना मुराद ले रहे वो ले रहे हैं, मुफ्ती साहब किबला भी साहिब इल्म है, उनको मालूम है कितने मानी हैं, वो कह दें कि आपको कौन सा मानी, इन मानी में से कौन सा मुराद ले रहे हैं, हम लिख देंगे। हम यानी कलाम का सिलसिला नहीं बढ़ाना चाहते, हम भी चाहते हैं जल्द अज जल्द शराइत मुनाजरा तय हो जाएं। हम कुछ कहेंगे तो उस पर फिर सवाल होगा, लेकिन जब किबला मुफ्ती साहब फरमा देंगे कि इन मानी में से आपकी कौन सी मुराद है, मैं खुदा शाहिद है, सिर्फ 2 टोक में हम फौरन लिख के दे देंगे। आप चाहे मुफ्ती साहब सवाल कर ले तो हम जवाब दे देते हैं, या तहरीर दे दे कि इतने मानी हैं, इतने मानी में से कौन सा मुराद ले रहे हैं, हम बता देते हैं कि ये माना मुराद है। भाई इसमें क्या हम बात बढ़ा रहे हैं, इसमें हम क्या बात बढ़ा रहे हैं? भाई आप लोग, आपने अभी उसूल सुन लिया, कलाम आपका है, मुराद मैं बताऊंगा। नहीं, आप मेरे उसकी मुराद मत बताइए, सिर्फ माना बता दीजिए कि इतने मानी होते हैं। मुराद दावा आपका है, आज तक आप मुबहम अकीदा ही रखे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद वजाहत नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा अकीदा मुराद लें। आपके नजदीक खुद ही मुतय्यन, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो जो दावा करते हैं या देखिए, फिर मेरा वक्त था, किबला मुफ्ती साहब ने फिर शुरू कर दिया मेरे वक्त में। भाई हम कहते क्या नहीं, गुफ्तगू को कम से कम समेटना चाहते हैं। मैं चाहता हूं मजीद आगे सवाल न, देखो आपने कहा था ऐसे लिख के दे दीजिए, सवाल हुआ ना, हमको मालूम था फिर सवाल होगा, तो मैं क्या है मजीद सवालों का सिलसिला आगे न बढ़े, गुफ्तगू आगे न जाए। ये नहीं कि बस एक ही चीज में सारा वक्त खत्म हो जाए, बकिया बात न हो सके। लिहाजा मुफ्ती साहब कहते हैं इतने मानी होते हैं, हम ये, आप मेरी मुराद मत बयान कीजिए, हम मुराद बयान करेंगे कि मैं ये मुराद है, सिर्फ माना बता दीजिए कितने कौन से, ताकि आपके मुताबिक हम बताएं। हम ये कहेंगे तो मुमकिन है कि आप और कोई उसमें निकालो कि ये भी माना मुराद हो सकता है, आया ये तो नहीं मुराद है, तो आप बता दीजिए। हम तायीन कर दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हम ये माना मुराद ले रहे हैं, भाई इसमें हम क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा मुफ्ती साहब जी कि आप उसूल के हिसाब से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं उसूली गुफ्तगू, तफसीर की किताबें, जब आपको पूरी तफसीर की दावा आपने किया है ना, कौन सी किताब है तफसीर की, और आगे लिखिए दावा हम साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या मानते आए हैं, ये तो कम से कम मुतय्यन कर दीजिए। मैं मुतय्यन कर दे रहा हूँ भाई, आप कहाँ मुवालता दे रहे हैं, आपको अभी मुनाफिक का माना ही पता नहीं है, और आप कौन सा अकीदा रखे हैं, दलील तफसीर हदीस इधर उधर घूम रहे हैं, कम से कम तारीफ तो कीजिए ना। ऐसा है, ठीक है, ये वकील हैं तो जो लोग ये कहते हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, वही बता दे। आपने अभी एक लफ्ज बोला है कि मुनाफिक, जो लोग नारा लगा रहे थे उन्हीं से पूछ लीजिए क्या माना मुराद है। किसे मुनाफिक से क्या मुराद करते हैं, इनसे पूछवा दीजिए, क्योंकि आप तर्जमानी कर रहे हैं, वकील की हैसियत से आप आए हैं, शरह आप इन्हीं से पूछवा दीजिए। बतौर तफसीर अभी आपने हदीस, कहा शरह मुनाफिकत का माना तो वाज़ेह उसूल है, सब हदीस, जानते हैं, हाँ, तो कहा था आपने, तो आप अपने हबाब से पूछवा दीजिए कि मुनाफिक से लोग क्या समझते हैं, हमें बता दीजिए। उसूल हदीस। अब फिर आप उधर जाए, हम किसी को बीच में कहीं नहीं कहा भाई, मेरे इसमें क्या भाई इबाम है, मैं क्या गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, ये फिर मुझे मजबूरन जुमला इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप शातिराना चाले इख्तियार कर रहे हैं। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे किबला, मेरे बुजुर्ग मोहतरम, आप सिर्फ ये बता दीजिए इतने मानी हो सकते हैं, आपकी मुराद क्या है, मैं मुराद बता देता हूँ। हम क्यों बताएंगे? तो आप नहीं बताएंगे तो हम भी नहीं तायीन करेंगे। बस सवाल आपने उठाया है, बात को आपने बढ़ाने की कोशिश किया है। अगर आप नहीं तायीन करें, माना नहीं बताएंगे तो हम तायीन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप आज तक मुज़ब्ज़बी न बहना में मर्जी शुमा हरचे खाही कुन, आपकी मर्जी, जो चाहे कहें, जो चाहे करें, लेकिन मैं उसूली गुफ्तगू से जर्रा बराबर आगे इधर उधर नहीं हूँगा। आप मुराद जानना चाहते हैं, माना बताइए, मैं अपनी मुराद बताता हूँ, मैं अपनी मुराद बताता हूँ। सुनिए,
मिसबाही साहब, आपसे अभी मुफ्ती साहब के मुनाज़रे के दावे के ताल्लुक से जो इबारत पेश की और कहा कि साहिल पर जरूरी है कि वो मुअल्लिफ से मुद्दई से उसके अल्फाज़ मुफ़रदा के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने कहा कि आप सवाल नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल कीजिए, मैं कहता हूँ सवाल कीजिए, लेकिन सवाल के साथ सवाल को वाज़े कीजिए, सवाल को मुनक्कह रोशन वाज़े कीजिए, ताकि मैं जवाब भी वाज़े रहे। जवाब की वजाहत सवाल की वजाहत पर मौकूफ है। सवाल ही गैर होगा, गैर वाज़े होगा तो जवाब भी वैसे होगा। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ आप क्या कहते कि ये जो आपने मुनाफिक कहा है, मुनाफिक का ये भी माना हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इनमें से आप कौन सा मुराद दे रहे हैं? चाहे लिख के दे दें, चाहे कह दें, हम अभी बताते हैं, 1 सेकंड के अंदर हम जवाब देंगे, हम जरा भी बात को तूल नहीं देंगे। 1 सेकंड में जवाब कैसे होगा? आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, सारे लोग सुन ले दोनों तरफ के। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि तुम अमीर मुआविया फिर आगे बात बढ़ेगी, मुनाफिक मानते हो, किस माने आगे फिर बढ़ेगी, कोई खत्म कर देंगे, नहीं खत्म होगा। अभी बोल रहे तो खत्म होगा। हम कसम खाने को नहीं खत्म होगा, मैं कसम खा के नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, लेकिन हम दे देंगे। ठीक है, हम माना बताते हैं, मुराद बताते हैं, बात वही खत्म होगी। अल्लाह ताला अन्हु को मुनाफिक मानना है, ये मेरा हक है, मैं आपसे सवाल कर सकता हूं। ठीक है, आप बताइए किसने आपको कहा है कि आप सवाल करने का हक नहीं है? मैं भी कहता हूं, मैं मुस्बित मुस्तदिल की हैसियत से हूं, सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब से देने, लेकिन मेरा सवाल ये है, ओ मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे मोहतरम, अपने सवाल को वाज़े कर दीजिए और सवाल को मुनक्कह कर दीजिए, रोशन कर दीजिए, ताकि जवाब भी रोशन रहे। अब अगर आप बसीद हैं कि हम नहीं बयान करेंगे, तो देखिए हम 2 माना निफाक के माना बयान करते हैं और इसकी क्या मुराद है हम क्या है बता देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए मौजू के ताल्लुक से। अगर आप लोग कहें कि हाँ नहीं बढ़ेगी तो मैं बताऊं, ठीक? अगर आगे बढ़ी बात तो अच्छा, एक बात मुझे बताइए। हाँ, मुफरदात, लफ्ज मुफरदात है, उसमें मुफरदात की मुफरद वाहिद कर दी गई है, मुफरदात जमा कर दी गई। हाँ, आप ये कैद क्यों लगा रहे हैं कि आगे बात नहीं बढ़ेगी? आपके दावे में अगर कुछ गड़बड़ी होगी, हम फिर उसकी वजाहत आप भाई इसमें क्या गड़बड़ी है कि हम मुआविया को मुनाफिक मानते हैं आपके नजदीक। अब आप कह रहे हो इबहाम है तो माना नहीं बयान कर रहे हो, तो अब हम बयान करेंगे। मुनाफिक का माना बताएं। तो अगर क्या है ऐसा जवाब चाहे तो बिल्कुल क्लियर कट वाज़े रोशन हो, तो अपने सवाल को वाज़े रोशन कीजिए कि इतने मानी हो सकते हैं, इनमें से कौन सा माना मुराद आप ले रहे हैं। ओ मेरे जी, मैं इसमें क्या गलत कह रहा हूं? मैं कहता हूं अभी 1 सेकंड में मैं जवाब दूंगा। एक बात लिखें आप हम खुद देखिए, आप जिद करेंगे यहीं पे हमारे बैठ रहे हैं। मैं पीछे जब तक मानी की तायीन नहीं करेंगे और माने नहीं बयान करेंगे इतने मानी है, हम नहीं बताएंगे। आपको तायीन नहीं करना है, आपको मानी बयान करना है, तायीन मैं करूंगा, मुराद मैं बताऊंगा। आप जिद करेंगे तो हम भी करेंगे। देखिए हम सारे मुनाजरे में जो शातराना, हम खूब अच्छे से वाकई में निकलने नहीं देंगे, फिर हमें मजबूर होकर हमको वो लहजा इख्तियार करना पड़ता है। मेरे अजीज, मैं नहीं चाहता हूँ कि बिला मुफ्ती साहब मेरे मोहतरम है, आप मेरे मोहतरम हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि बात बढ़े आगे। तो आप कह दीजिए माना बयान कर दें, या तो फिर ये जो मैं बयान करूँ। लोग तो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप माने के तायीन करें, खत्म करें इसको। मैं तो माना तो बताएं कि कितने मानी होते हैं, हम तायीन करते हैं और बकिया शर्तें बात आप बढ़ा रहे हैं। शराइत लेटर पैड के साथ मुंसलिक है जी। एतकादी अमली ये बताया है, एतकादी अमली दोनों हम कहते हैं। वो मुनाफिक फिल एतकाद भी है, मुनाफिक फिल क्या है, फिल अमल भी है। लिख दीजिए, ठीक, लिख दीजिए, वाज़े रोशन लाइए, मैं अभी लिख के देता हूँ। ये कोई वो नहीं, मैं फौरन, मैं सिर्फ ये चाहता था, आपने तो कहा कि 2 माना बताया, मुनाफिक फिल एतकाद या मुनाफिक फिल अमल, हम दोनों मानते हैं। कोई हम नहीं बात बढ़ाना चाहते मेरे अजीज। ऐसा है, 1 मिनट, हम ये लिख के देते हैं। ऐसा है कि सदर साहब, मुझे भी इजाजत है? बोलूं? नहीं बोलूं मैं? उन्होंने पहले कहा है कि हम अमीर मुआविया को सहाबी मुनाफिक मानते हैं, तो उन्होंने सहाबी भी कहा है और मुनाफिक भी कहा है। ये बताइए, क्या मुनाफिक बिल एतकाद और सहाबियत ये दोनों जमा हो सकती है? जी बिल्कुल जमा हो सकती है, जमा हो सकती है।
बुखारी में हदीस है और मौजूद है जी। आप उसे पढ़ सकते हैं। लिख देंगे लिख देंगे क्या? आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। ये भी लिख दें, फिर इसके बाद नहीं बात बढ़ेगी आगे ना। ठीक, एक मिनट, हम बुखारी दोनों मानते शरीफ हैं, का दोनों नाम जमा हो लेना, सकते हैं। बुखारी शरीफ का नाम लेना अब आपको जेब नहीं देता, इसलिए लेकिन- कि ठीक है, सैयदना इमाम लेकिन- बुखारी ने लेकिन बुखारी फरीके शरीफ मुखालिफ के लिए में उसके हजरत हैं। अमीर मुआविया की कई हदीसें दर्ज की हैं। ठीक है, तो इमाम बुखारी के नजदीक वो आदिल है, मुखलिस है, सहाबी है, मोमिन है, मुसलमान से जवाब आपको दिया जाता है। उनका नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। क़िबला मुफ्ती साहब आप बखूबी जानते हैं कि फरीके मुखालिफ यानी हम आपको अपनी किताब से हवाला दें, आपके लिए मकबूल नहीं होगा, वो लायक एतबार नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आपकी किताबों से जिस पर आपका क्या है इत्तिफाक है, ठीक लिख दें, आप वो दोनों चीजें लिख दें, दोनों लिख दें। आप और कुछ को वो भी लिख देंगे, ठीक है। मेरे अजीज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये साथ में देंगे। हाँ हाँ, ये साथ में दे दीजिए। ये अभी अभी मत दीजिए। हाँ, इसको दोनों सदर को बुला कर ये दे देंगे, दौलत को उनको मत दीजिए, वो हराम खुरानी जो देते हैं वो अपना सदका ले लेना और रिसीव ले लेना। अच्छा बस डबल पे बस बस ठीक ठीक है। क्या बस दो माना, चलिए दो माना है। हाँ फिर जुमले ताम ना किसी। चलिए ठीक है, ये इसको बनाइए, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। कुछ भी लिख के दे। सहाबियत और निफाक। भी मानते हैं और साइन कर, साइन चलेगी वो साइन। बराबर है इसी जगह पे अमली नहीं, वो लिख के दे दिया हजरत ने उससे मुआवजा काम करके फरमाया। ठीक ठीक है ना, ये सही चाहिए। इसमें सदर के हाँ, नहीं इनका दस्तखत इसमें नहीं रहेगा, आप लोगों अब आप कहिए बहैसियत सदर, ये यहाँ उनको कहिए कि वक्त मुनाजरा वो शराती मुनाजरा से ज़्यादा वक्त हो रहा है, इसलिए अब बकिया शर्तें यहाँ के जिम्मेदार हजरात तय कर लेंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए, यहाँ मुस्तफा जाना पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए हो गया ना, बात कर लिया। क्या अगर दोनों बोल रहा है, अगर दोनों बोल रहा है, हजरत ने गिरफ्त भी की कि मुनाफिक आप साहबी भी मानते हैं और मुनाफिक के एतकादी मानते हैं, क्या दोनों जमा हो सकता है? अच्छा दोनों मानता है, ये दोनों बात है, ठीक है, अच्छा है, उसके पास हजरात मंदूबीन और उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात, आपने मुझे शराइत मुनाजरात तय करने के लिए बुलाया। मैं आपकी दावत पर हाजिर हुआ और जो आपने इख्तिताम का वक्त मुतय्यन किया था उससे ज़्यादा वक्त हो गया है, लिहाजा मैं अहले सुन्नत व जमात के सदर मोहतरम से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करें और फिर आगे के लिए कदम उठाया जा सके। और
ادھر سے بھی یہ بات ہوئی اور ہم سب حضرات کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ بقیہ شرطیں شہر بگلور کے دونوں طرف کے ذمہ دار حضرات مل بیٹھ کر طے کر لیں گے اور تاریخ وغیرہ کے حوالے سے وہ اپنی ثوابدید پر جو مناسب سمجھیں گے اس پر عمل درآمد کریں گے۔ میں جماعت اہل سنت کے تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے احقاق حق اور اظہار حق کے لیے یہ مجلس سجائی اور جس مقصد کے تحت یہاں جمع ہوئے تھے بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور بہت ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا، آپ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہوں گی۔ لہٰذا میں اب اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگلی کارروائی کا اعلان کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دونوں طرف سے جو ہے شرائط مناظرہ کی شرائط طے ہوئی ہے، اب کب ہوگی کہاں ہوگی مطلب میلاد کے بعد انشاءاللہ میلاد النبی کے بعد میں جو ہے وقت طے کیا جائے گا۔ دوسرا جو بھی شرائط ہیں اور بھی اس میں کچھ ہے وہ سب جو ہے انشاءاللہ میلاد النبی کے بعد میں طے ہوگی۔ آپس میں رکھ کے طے کر دیں گے۔ کھڑے ہو کے سلام پڑھیں۔ الحمدللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ آج کی محفل ہوئی۔ اب 3 شرائط آج طے ہوئے ہیں، ایک موضوع مناظرہ اور سند یافتہ عالم کا ہونا اور میلاد کے بعد تاریخ اعلان ہونا۔ باقیہ شرطیں جو ہیں انشاءاللہ اور باقیہ 6-7 شرطیں ہوں گے۔ اب جس کے لیے پہلے سے جو چرچا ہے یہ ادائے کمیٹی شفیع وزارت افش ذریعہ میری دولت سجاد یہ لوگ انشاءاللہ بیٹھ کر طے کریں گے۔ ان کو بلائیے۔